ஆழறிய ஒருவனாம் இருவர் முக்கனானார் பெரும் Incredible India. Incredible India. Incredible India. Hi everyone. Welcome to Srajan India 1. This is 8th 9th March 2024, day number 68. Never stop believing in hope because miracles happen every day. Today we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes of time. See, the world breaks everyone, but we become stronger in the broken places. You can be a kind person and still say no, and no means no. You can prioritize your needs, set boundaries, disagree with people, be honest, challenge poor behavior, walk away from toxic environments, make mistakes, stand up for yourself, protect your time and space. Study full throttle. This is question number 1. Consider the following statements regarding ordinances. This is ordinances 1, 2, 3 and 2, 1, 3. Rejection of an ordinance would imply the government has lost majority. If an ordinance makes a law that Parliament is not competent to enact under the Constitution, it shall be considered void. If an ordinance lapses, the only option for the government is to reissue or re-promulgate it. How many of the above statements are correct? Question number 2. Consider the following statements regarding Deputy Chief Minister of a state. Article 163 of the Constitution mentions about the Deputy Chief Minister. Is it so? The post of Deputy CM is equivalent in rank to that of Cabinet Minister in the state. So आप बताइए इनमें से कितने कौन से statements correct हैं? ये है South China Sea. The South China Sea is bordered by which of the following countries? Malaysia, Philippines, Laos, Indonesia and Brunei. So आपको बताना है किन countries का जो littoral countries हैं South China Sea की. This is question number 4. Which among the following is the nodal procurement agency for pulses in India? India Pulses and Grains Association, National Pulses Corporation Limited या फिर NAFED, National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India या फिर Food Corporation of India. So what is the right answer? This is question number 5.
Consider the following statements regarding the benefits of pulses on environment. Pulses का वातावरण में क्या क्या benefit होता है? Pulses enhances soil fertility and reduce the consumption of major fertilizers required for the cultivation of food crops. Is it true? The roots of pulses and legumes contain soil-enriching bacteria collectively known as rhizobium. Pulses perform biological fixation of environmental nitrogen. So आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या है. So ये डेली क्विज है आज के लिए. इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन डाउन बिलो दे सकते हैं. This is Telegram quiz. Every day we are having 5 such multiple choice questions in our Telegram channel. आप इनको भी डेली बेसिस पे 5 questions अटेम्प्ट करिए. This is टेस्ट सीरीज 1. ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है. इसमें हम प्रीलिम्स 26 ऑफ मई प्रीलिम्स एग्जाम का अभी चैप्टर चल रहा है और हम ये सारी चीज़ें इसमें इवनिंग 8 to 10 की विंडो में कर रहे हैं. आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा. और मॉर्निंग 9:30 पे हो रहा है रिवीजन क्लासेस जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन. न्यू के बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं. एडवांस्ड, ब्रांड न्यू, करंट, डिफरेंट, मॉडर्न, ओरिजिनल, रीसेंट, स्ट्रेंज, अनफैमिलियर, यूनिक, अनयूजुअल. कटिंग एज, लेटेस्ट, न्यू फैंगल्ड, नॉवल, now, up to date, youthful, unknown, state of the art and contemporary. So these are synonyms of the word new. ये है सोशल मीडिया अपडेट. पहला जो सोशल मीडिया इन्फोग्राफिक है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है. द नटराजा स्टैचू पोर्ट्रेइंग शिवा एज अ कॉस्मिक डांसर. क्या आप बता सकते हैं ये स्टैचू किस मटेरियल का बना है? ब्रोंज, कॉपर या फिर टेराकोटा. ये है धूली शिल्पा, एक आर्ट फॉर्म है केरला का. Dhuli Shilpa. Dhuli Shilpa is a type of floor art that originated among the tribes in Kerala in the 12th century as a sacred activity. The style can be divided into abstract art जैसे कि geometric design और यहाँ पे figurative design भी होता है. Living tradition है. It is also used to ward off evil spirit and to please the gods. So ये है Dhuli Shilpa. This is from Kerala. एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. द अक्लेम्ड स्पिरिचुअल क्लासिक डॉक्यूमेंट द स्टोरी ऑफ विच पर्सन? स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी परमहंस योगानंद जी या फिर दयानंद सरस्वती जी. ये है नारायण पेट साड़ी. दिस इज फ्रॉम महबूबनगर तेलंगाना. ये रिनाउंड है फॉर इट्स इंट्रिकेट हैंडलूम वीव वेयर ईच ड्रेप टेल्स अ स्टोरी ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन reflecting the rich heritage and artistry of the region. शास्त्रीय नृत्य है सतरिया की रचना. शास्त्रीय नृत्य सतरिया की रचना किस महापुरुष द्वारा की गई है? श्रीमंत शंकरदेव, पंडित बिरजू महाराज, सोनल मानसिंह या फिर मल्लिका साराभाई. अ सिंबल ऑफ इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप है कटक का सिल्वर फिलग्री. इसको जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है. Which festival celebrates the rich maritime history of Odisha? बाली यात्रा, कोस्टल फेस्टिवल, समुद्र उत्सव या फिर कृष्ण पुष्करमन. कर्नाटका में मनाया जाता है वेरामुडी महोत्सव. भगवान को बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मुकुट से सजाया जाता है. सो इसमें किन भगवान के लिए है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश या फिर भगवान शिव. सो ये है सोशल मीडिया अपडेट. इसको हम कंटिन्यू रखेंगे. न्यूज़पेपर सेशन भी अब ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा. आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट ऑन डेली बेसिस और टाइमिंग इसका अराउंड 2:30 होगा. सो दिस इज द हिंदू, फ्राइडे March 8, 2024. न्यूज़पेपर में रेंज भी इंपॉर्टेंट होती है और एक सर्टेन डेप्थ एंड डायरेक्शन. और डेप्थ एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सिलेबस होना चाहिए. केरला गवर्नर सैक्स वाइस चांसलर्स ऑफ 2 वेरिसिटीज. तो जो चांसलर होते हैं ये डी फैक्टो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है. सो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं चांसलर और यहाँ पर केरला गवर्नर सैक्स वाइस चांसलर ऑफ 2 वेरिसिटीज. INS कोलकाता असिस्ट्स अटैक्ड वेसल्स. तो ये गल्फ ऑफ अडन है. यहाँ पे हुदी रेबल्स का भी अटैक हो रहा है. INS कोलकाता असिस्ट्स अटैक्ड वेसल्स. यूनियन गवर्नमेंट हाइक्स डियरनेस अलाउंसेस. दिस इज महंगाई भत्ता. The determinant in more women in the job market, workforce participation, International Women Day भी था अभी. Patriarchy is root cause of their low participation. और धर्मशाला में टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, फाइनल टेस्ट मैच. यहाँ पे बात है कि अगर किसी पार्टी में डिफेक्शन हो रहा है और A पॉलिटिकल पार्टी 2 पॉलिटिकल पार्टी B और C में बन रही है
तो हम किस पॉलिटिकल पार्टी को ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मानेंगे। प्लस ये जो डिफेक्शन होगा, इसका जो इनिशियल प्रोसीडिंग्स होगा वो स्पीकर ऑफ द हाउस देखेंगे। तो स्पीकर ऑफ द हाउस जो होंगे, उनका जो जजमेंट है, क्या उसे चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो एक्चुअली ये महाराष्ट्र का केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर से पूछा है कि इफ स्पीकर कॉन्ट्राडिक्टेड वर्डिक्ट, सो लेट अस सी। The speaker says real political party is discernible from which faction held the legislative majority at the time of the emergence of the rival factions. तो A political party B और C में डिवाइड हुई और B political party के पास ज़्यादा मेजॉरिटी थी, तो A political party का जो रियल सक्सेसर होगा वो B political party कहा जाएगा। Is this not contrary to what we had laid down on May 11? Let us see। इसमें अभी जो मैटर है वो है डिफेक्शन। डिफेक्शन के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी होता है और पॉलिटिकल पार्टीज को जो सिंबल्स प्रोवाइड होते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या सिंबल होगा, ये किसकी जिम्मेदारी है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, या फिर स्पीकर है, या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। लाइफ एज यूजुअल, परहैप्स ऑब्लिवियस टू द फैक्ट दैट इंटरनेशनल वुमेन्स डे फॉल्स ऑन March 8। ये ट्राइबल वुमेन हैं फ्रॉम कोटिया विलेज ऑन आंध्र प्रदेश ओडिशा बॉर्डर, और ये कर रहे हैं यहाँ पर दिस जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, ये ट्राइबल्स की इकोनॉमी और लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये ऐसे जो वुड कलेक्शन होता है फ्रॉम फॉरेस्ट से किया जाता है। नॉट मच हैज चेंज्ड फॉर दीज ट्राइबल्स स्पेशली द वुमन। सो इंटरनेशनल वुमन डे है, बट अगेन द रियलिटी इज, ग्राउंड रियलिटी इज कि अभी भी वास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वुमन एम्पावरमेंट और जो वुमन राइट्स हैं उनकी जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर कंटेम्प्ट प्ली अगेंस्ट SBI फॉर सीकिंग टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिजेक्ट करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जितने भी इशू हुए थे उसका डेटा रिलीज करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा वी विल रिलीज द डेटा, बट हमें थोड़ा टाइम चाहिए, तो 30 जून का उन्होंने टाइम मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना डिले पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये जो डिले है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। सो लेट अस सी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज ने बताया कि अगर डेटा डिले हो रहा है तो क्या ये कंटेम्प्ट माना जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। लेट अस सी। चाइना कॉल्स गाजा वॉर अ डिस्ग्रेस टू सिविलाइजेशन, विच इज ट्रू। जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है गाजा में, इट कैन नॉट एंड इट शुड नॉट बी जस्टिफाइड। इन्फ्लेशन लाइकली स्टेड ओवर 5% इन फेब्रुअरी में भी, सो दिस इज नंबर। देन यहाँ पे आर्टिकल 370 है और ये है री इनकारनेशन एंड रियल पॉलिटिक कीप दलाई लामा सक्सेशन इन डायलमा। सो दलाई लामा इज अ पोस्ट, दलाई लामा इज अ पोस्ट, और इनको गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बोला जाता है तिब्बत का। तो तिब्बत अभी ऑक्यूपेशन में है चाइना के, और जो तिब्बत में जो दलाई लामा जो गवर्नमेंट थी, ये अभी एग्जाइल में इंडिया में धर्मशाला में रह रहे हैं। सो एसोटेरिक क्वेश्चंस हैं री इनकारनेशन के, रेयरली हैव रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो अभी जो तिब्बत में दलाई लामा जी हैं ये एक पोस्ट है, तो क्या बिकॉज जो प्रेजेंट दलाई लामा जी हैं वो 88 ईयर ओल्ड है, 88 ईयर ओल्ड हैं, तो क्या अब ये है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा जी का सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस क्या री इनकारनेशन होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सो लेट अस सी। 14th Dalai Lama ji, who has lived in exile in the northern Indian town Dharamshala since the failed uprising in 1959। ये तिब्बत में जब चाइना ने ऑक्यूपाई किया तो दलाई लामा जी, 14th दलाई लामा जी इंडिया में आ गए थे। floated the possibility of non-traditional succession। He already ended the post's political power in 2011 in favor of an elected government in exile। So let us see। बीजिंग के लिए ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है, एट द सेम टाइम इंडिया के लिए भी ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है। आप नोबेल प्राइज विनर भी हैं। मोरल टीचिंग्स एंड इडियोसिंक्रेटिक ह्यूमर हैव मेड हिम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस लीडर। तो आप हैं दलाई लामा जी। देन दिस इज नेक्स्ट वन, और यहाँ पर दिस इज पेज नंबर 3। ये है बीटिंग द हीट, अ फ्लॉक ऑफ ईग्रेट्स हेराल्ड द स्टार्ट ऑफ चेन्नई समर विद अ डिप इन अडेयर रिवर। तो ये ईग्रेट्स हैं और अडेयर रिवर कहाँ पर है, चेन्नई में है। NIA traces trail of cafe blast suspect। Covishield vaccination demonstrated more robust immune response compared to Covaxin। Kerala comes up with a long short-term measure to prevent man-animal conflict। Kerala में elephants हैं,
वाइल्ड लाइफ काफ़ी रिच है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और ह्यूमंस और वाइल्ड एनिमल्स का हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट। सो इस कन्फ्रंटेशन को स्टॉप करना ज़रूरी है। सर्विस ऑफ वर्कर जो हैं, अगर किसी का लाइफ लॉस होता है तो उन्हें कैसे कॉम्पनसेट किया जाए। इनहर एक इन्वेजिव प्लांट्स भी होते हैं। इन्वेजिव प्लांट्स क्या होते हैं? जो उस इकोलॉजी के नहीं होते, ये बाहर कहीं से आते हैं और ये कैटास्ट्रॉफिक होते हैं लोकल इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे सेना इन्वेजिव प्लांट है, और जैसे पहले हमने यूकेलिप्टस हटाया था, अकैकिया प्लांटेशन है, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की हम बात कर रहे हैं। सो द थिंग इज, इन्वेजिव स्पीशीज को हटाने की बात है। सो इको टूरिज्म भी हम बढ़ा रहे हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करना इज इम्पॉर्टेंट। VP asked not to administer oath. Then this is Kerala own OTT platform launched. Then Parliament case पुलिस seek more time to file charge sheet. बेंगलुरु में टैंकर सप्लाई पे कैप कर दिया गया है बिकॉज बेंगलुरु में वाटर का सीवियर शॉर्टेज चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज गॉट 60% ऑफ फंड्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज, ऐसा बताया है। 85% of gig workers sweat it out for over 8 hours. So gig economy is not that easy. 8-8 घंटे यहाँ पे वर्क है। 65% वुमन फील अनसेफ। सो ये सर्वे में 5000 गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स का ये डेटा आया है। सो परमानेंट गिग वर्कर इज एन ऑक्सीमोरॉन बिकॉज ये रिक्वायरमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें हायर एंड फायर टैक्टिक्स भी एट टाइम्स यूज होती है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की भी बात है। मिनिमम वेजेस डिसाइडेड नहीं है। वेलफेयर का भी डिफिकल्टी यहाँ पर होता है। कैबिनेट अप्रूव्स 4% हाइक इन DA फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर। तो 4% का हाइक मिला है फॉर महंगाई। यूनियन गवर्नमेंट ने उज्ज्वला असिस्टेंस 1 मोर ईयर बढ़ा दिया है। उज्ज्वला असिस्टेंस में उजाला योजना में दिस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG गैस सिलेंडर और कनेक्शन पूरा प्रोवाइड किया जा रहा था। सिटीजन्स हैव राइट टू क्रिटिसाइज रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंडिया एक फेयर एंड इंडिपेंडेंट कंट्री है। सो इंडिया की जो रियल स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारे सिटीजन्स में, हमारे लोग में। दिस इज रैलिंग बिहाइंड, ये उत्तराखंड है। दिस इज नारी शक्ति महोत्सव। देन दिस इज एयर इंडिया डिबोर्ड्स वुमन पैसेंजर। AI नॉलेज कंसोर्टियम फॉर्म्ड बाय 12 ऑर्गेनाइजेशन। तो AI नॉलेज कंसोर्टियम, AI इज द न्यू बजवर्ड। Then this is 5th generation fighter jet project gets CCS approval. CCS मतलब Cabinet Committee on Security। तो ये 5th जनरेशन है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा जो हम खुद मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं। ये 25 टन ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इंटरनल वेपन बे है। डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनटेक है जो इंडिया में बनाया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है फाइटर एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया, जैसे कि तेजस। सेंटर एस्टिमेट्स डिप इन अनियन पोटैटो प्रोडक्शन। तो इंडिया का हॉर्टिकल्चर भी डिक्लाइन हुआ है। पोटैटो अनियन का जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर प्राइमरली एक उसमें डिप देखने को मिल रहा है। जैसे बनाना हुआ और सारे फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर में कैबेज एट्सेट्रा, पोटैटो, टोमेटो, वेजिटेबल्स, इनका डिक्लाइन हुआ है। सो दिस इज वेजिटेबल्स। अब ये इसलिए सीरियस न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिकॉज इससे होता है इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा हेडेक है। INS कोलकाता असिस्ट वेसल्स हिट इन गल्फ ऑफ अडन, रेस्क्यूज 21 क्रू मेंबर। तो इंडियन नेवल डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता। फॉर इंडिया होमलेस वुमन TB केयर इज शेप्ड बाय जेंडर नॉर्म्स एंड इकोनॉमिक प्रिकैरिटी। तो ट्यूबरक्यूलोसिस 2025 तक एंड करना है। इसमें ट्यूबरक्यूलोसिस में भी जो हैव नॉट्स हैं या जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको ज़्यादा इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। द अनमास्किंग हाउ मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट इम्पैक्ट चिल्ड्रन। नो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। हमारे यहाँ ब्यूटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? क्या किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया, एडवर्टाइजमेंट ने बोल दिया, मूवीज़ ने बोल दिया तो वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होंगे? एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे शी इज़ जस्ट 12 एंड लुक्स फॉर एंटी एजिंग। 12 साल की बच्ची है और एंटी एजिंग क्रीम की ज़रूरत पड़ रही है। सो दिस टेल्स कि उनके दिमाग पर कितना ज़्यादा प्रभाव हो रहा है दिस ग्लैमर एंड दिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड एट्सेट्रा का। सो ये लेबलिंग ऑन क्रीम्स को फाइन कर रही है। कंसर्न मदर अबाउट हर डॉटर उन्होंने बताया। सो जैसे स्किन केयर रूटीन है, दिस वाइटनिंग रिजीम है एट्सेट्रा। सो दिस इज़ अगेन अ कॉज ऑफ वरी। देन दिस इज़ एडोलेसेंट जो हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं। चिल्ड्रन स्मॉल बॉडी साइज, रैपिड ग्रोथ रेट, डेवलपिंग टिश्यूज, ऑर्गन्स, इमेच्योर इम्यून सिस्टम, ये सब टॉक्सिकेंट से इम्पैक्ट होता है।
तो ये जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं होते हैं, स्किन केयर रूटीन एट्सेट्रा। फिर हमारे यहाँ जैसे जो फेयरनेस का एक दिस मिसकंसीव्ड मिसप्लेस्ड नोशन होता है, तो अगर क्रीम्स के थ्रू स्किन को थिनर किया जा रहा है तो आपकी स्किन आपको यूवी रेडिएशन से नहीं बचा पाएगी। तो फिर अगर हम बहुत ज़्यादा दिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। रेगुलेशन इज इम्पॉर्टेंट। कई बार इसमें लाइटनिंग क्रीम्स एट्सेट्रा स्टेरॉइड्स हो रहे हैं और इससे ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आती है। सो द थिंग इज हमें दो फ्रंट पे वर्क करने की ज़रूरत है। पहला तो हमें जिस टाइप का जो इन्फ्लुएंस है और मार्केटिंग होती है उसमें कंज्यूमर सर्वे को, कंज्यूमर डिपार्टमेंट को एक्ट करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम हमें बच्चों को समझाने की और बच्चों को एक प्रॉपर डायरेक्शन देने की भी ज़रूरत है। और सच टाइप ऑफ जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पे जिन्हें बेचा जाता है उस पर भी गवर्नमेंट क्रैकडाउन इज रिक्वायर्ड अगर वो मिसलीडिंग है और वो हार्मफुल है। A slippery slope. Tourism in wildlife parks should be not be at odds with conservation efforts. तो जैसे जिम कॉर्बेट में 6000 अभी पेड़ काटने की बात है, हम इको टूरिज्म बढ़ा रहे हैं ताकि फाइनेंशियली जो नेशनल पार्क्स हैं, रिजर्व्स हैं, वहाँ पर टूरिस्ट आएँ और फाइनेंशियल ग्रोथ हो। टाइगर इंडिकेटर होता है किसी भी इकोसिस्टम का। टाइगर बिकॉज कहलाता है टाइगर इज कीस्टोन स्पीशीज। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ट्रीज काटे जा रहे हैं, रोड्स बनाई जा रही है, कॉन्क्रिटाइजेशन हो रहा है, लाउड म्यूजिक है एट्सेट्रा, तो इससे एनिमल्स स्ट्रेस में आते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यहाँ पर अफिलिएटेड बॉडी है MOEFCC की। वाइल्ड लाइफ सफारी होती है, इसमें एट टाइम्स क्या होता है, देखो एक बात होती है सिविक सेंस। ये सिविक सेंस होना बहुत ज़रूरी है। सिविक सेंस मतलब वी कैन से एक वी आर नॉट लाइक कि हम फॉरेस्ट में गए हैं तो दिस इज नॉट अवर डिस्को, दिस इज नॉट अवर बार। द थिंग इज वी शुड रेस्पेक्ट द लॉ ऑफ नेचर। फॉरेस्ट का जो लॉ है उसको रेस्पेक्ट करना है। एट टाइम्स हम अगर एनिमल्स को इरिटेट कर रहे हैं, कुछ थ्रो कर रहे हैं, लाउड नॉइज कर रहे हैं, तो एनिमल्स आप पे अटैक भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें एनिमल्स ने टूरिस्ट पे अटैक किया है और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स उसका रीज़न है अनसिविक बिहेवियर बाय द टूरिस्ट। सो द थिंग इज जैसे अफ्रीका कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हम कैट प्रेजेंस चीता इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। द थिंग इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अगर ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन होता है तो इससे प्रॉब्लम्स आते हैं। ट्रबल्ड वाटर्स है, चाइना शुड अडॉप्ट डायलॉग टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विद नेबर। तो चाइना इज वन नेबर जिससे सारे नेबर्स दुखी है। वाई? बिकॉज चाइना का जो एटीट्यूड है, चाइना का एट टाइम्स वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी होती है, चाइना की जो लैंड ग्रैब टैक्टिक होती है, सो एवरीवन इज लाइक नॉट हैप्पी विद चाइना। रैकलेस और इलीगल जैसे साउथ चाइना सी में फिलीपींस की बोट को डैमेज किया, कोस्ट गार्ड को डैमेज किया, स्कैरबोरो शोल है, स्पार्टली आइलैंड्स हैं। सो द थिंग इज ये जो साउथ चाइना सी है इसमें चाइना और स्पेशली फिलीपींस के बीच में काफ़ी बड़ा विवाद है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें रशिया, तो चाइना के बॉर्डर इश्यूज रशिया से भी है। जापान की बात करें तो ryukyu एट्सेट्रा आइलैंड के लिए जापान के साथ भी चाइना लॉगर हेड पे रहता है। सो फिलीपींस ने रेगुलर अपनी री सप्लाईज भेजी थॉमस शोल में और यहाँ पर फिर बाद में चाइनीज वेसल ने उनको काउंटर किया। सो इससे फिलीपींस और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ा है। तो लेट अस सी। Then this is a bold step towards cervical cancer free future. This is very very important. Cervical cancer is a serious issue और the thing is इसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट इसीलिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV जो प्राइमरीली कल्प्रिट है डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर का, इसके लिए गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करने की बात कर रही है। WHO ने 90-70-90 टारगेट बनाए हैं 2030 तक, मतलब 90% गर्ल्स को फुल्ली वैक्सीनेट किया जाएगा HPV वैक्सीनेशन से बाय द एज 15। 70% वुमन टू अंडरगो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट बाय द एज ऑफ 35 एंड 45 एंड 90% ऑफ वुमन विद सर्वाइकल कैंसर टू बी ट्रीटेड। तो ये टारगेट है, 90% को वैक्सीनेशन देना है अंडर 15 गर्ल्स, 70 जो है इनका टेस्ट होगा वुमन 35 टू 45 और जो 90% जो है उनका प्रॉपर यहाँ पर ट्रीटमेंट भी होगा। सो 100 कंट्रीज के अक्रॉस इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वैक्सीनेशन 2007 से लॉन्च हो चुकी थी। सो दिस इज देयर। अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है लो इनकम कंट्रीज़ में भी। सिक्किम मॉडल यहाँ पे बताया गया है। पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी में हमें ज़रूरत है कि हम अवेयरनेस लाएं,
हम टीचर्स को अवेयर करें, पेरेंट्स को अवेयर करें, गर्ल्स को अवेयर करें, हेल्थ केयर वर्कर्स को, मीडिया को अबाउट द बेनिफिट ऑफ HPV वैक्सीनेशन। तो सिक्किम में 97% तक कवरेज हो चुका है, विच इज़ एग्जाम्पलरी। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड वी हैव वैक्सीनेशन, सो वी शुड गो फॉर वैक्सीनेशन। लेस देन 15-90% जो गर्ल्स हैं उनका हमें एटलीस्ट सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन उन्हें लगाना है। सो इससे हेल्थ इम्पैक्ट होता है और चैलेंजेस ह्यूज हैं। इससे पहले जैसे हमने कोविन वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर किया, ऐसे ही यूविन प्लेटफॉर्म है, इंटरिम बजट में हमने अनाउंस किया है। सो द थिंग इज हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। ये है द डिटर्मिनेंट इन मोर वुमन इन द जॉब मार्केट। डिटर्मिनेंट काफ़ी अच्छा थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल, थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं कि लेबर फोर्स में, वर्क फोर्स में, ऑफिसेज में, पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट सर्विसेज में वुमन क्यों कम नंबर पे दिखती हैं। तो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूरी है और पार्टिसिपेशन वुमन का कम है। इसके बहुत सारे रीज़न है। प्राइमरली रीज़न है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मतलब एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर जिसमें फीमेल्स को प्रिविलेजेस नहीं है। अ सोशल स्ट्रक्चरल फिनोमिनन इन विच मेल्स हैव द प्रिविलेजेस ऑफ डोमिनेंस ओवर फीमेल्स। तो डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट वुमन और इससे उन्हें ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। वैल्यूज़ में, एटीट्यूड में, कस्टम्स में, सोसाइटी में, ऑनरशिप ऑफ एसेट्स में, इनकम में, वेल्थ में, इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी में, द थिंग इज पैट्रियार्की इज सच कि ये मेल डोमिनेंस है और वुमन पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं है। तो मेन को ब्रेड विनर कहा गया है और वुमन होम मेकर है। और द थिंग इज कि ये जो वर्क है, लाइक केयर इकोनॉमी इटसेल्फ इज अ वेरी बिग इकोनॉमी, बट केयर इकोनॉमी को GDP में काउंट नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं तो वो आसान है। वुमन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउस होल्ड अपकीप, केयर टू चाइल्ड, ओल्ड, सिक, डिसेबल्ड इन द फैमिली। द थिंग इज ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है और ये 24/7 जॉब है। सो इसको भी ड्यू रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। ऑल्दो वुमन इस टास्क को कर रही है विद लव, दिस वर्क ऑफ वुमन इज इंफीरियर वर्क फॉर सेवरल रीजंस। बिकॉज एक तो इसमें रेगुलर बेसिस में टाइम डिफाइन नहीं होता है कितने वर्किंग आवर्स हैं। दूसरा, इसमें एज सच इसको GDP में केयर इकोनॉमी को काउंट भी नहीं किया जाता है। तो द थिंग इज ये जितना भी वर्क होता है टायरलेस 24/7 वर्क, ये कहलाता है थैंकलेस जॉब। थैंकलेस जॉब। सो द थिंग इज टोटल वर्क फोर्स में वुमन को फॉर्मल वर्क फोर्स में एम्प्लॉय करने की बात है। इसके बाद क्या आता है, हमारी जो पॉलिसीज़ है, टाइम स्ट्रेस है, टेक्नोलॉजी है, लो प्रोडक्टिविटी है, एट टाइम्स वो अनजस्ट, अनफेयर एंड अनएक्सेप्टेबल भी होती है। सो द थिंग इज रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी आ जाती है, स्पेशली आफ्टर मैरिज एंड किड्स। रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो फिर उस केसेस में भी वर्क एंड करियर इम्पैक्ट होता है। सो द थिंग इज वुमन लेबर पावर को इकोनॉमी में इंक्लूड करना है और अगर हम ये नहीं करेंगे तो अगेन जो जेंडर डेमोग्राफिक डिविडेंड है हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज देयर। और इसके अलावा लिखा है जैसे अनपेड वर्क है, चाइल्ड केयर, डिसेबल्ड एट्सेट्रा का, वो रिकॉग्नाइज नहीं है। अनपेड डोमेस्टिक वर्क है, प्लस फिर इशू ऑफ सबॉर्डिनेशन भी आ जाता है, पैट्रियार्की आती है और इसमें ईगो क्लैशेस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखा है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक रियल सेंस में वुमन एम्पावरमेंट करना डिफ़िकल्ट है और जो ज़रूरी भी है, मोर वुमन इन द जॉब मार्केट। फॉल एंड राइज इन वुमन वर्क पार्टिसिपेशन, सेम PLFS NSS का डेटा बताता है कि वुमन वर्क फोर्स जो है, जैसे अभी अगर हम नोबेल प्राइज़ भी देखें तो नोबेल प्राइज़ में क्या बताया था कि जैसे एग्रीकल्चर है, फिर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ है और हायर इनकम ग्रुप कंट्रीज़ है, इसमें सर्विसेज है। तो यहाँ वुमन ज़्यादा है अगर प्रिमिटिव है एग्रीकल्चर। हायर जो सोसाइटीज़ है, हायर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, यहाँ पर सर्विसेज है तो वुमन पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। बट मोस्ट ऑफ द दिस मिडिल इनकम ग्रुप जो होती है, यहाँ पे वुमन वर्कफोर्स एब्सेंट है। द बर्डन ऑफ वुमन इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, तो ऐसा नहीं है कि वुमन वर्कफोर्स नहीं है। आप एग्रीकल्चर देखो, सिंगल हैंडेडली वुमन्स वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी आपको वुमन एम्प्लॉयज़ देखने को मिलेंगे। ब्रिजिंग द जेंडर गैप इन हेल्थ रिसर्च, सेलिब्रेशंस इन फुल स्विंग। देन शेयर ऑफ नेशनल पार्टीज हुज इनकम इज फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड 82.42% है। मोजाम्बिक, नाइजीरिया, देन प्रमोशन टी डेवलपमेंट एंड दिस इज नेक्स्ट वन। यहाँ पर बात है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल और ये है इंग्लिश। डिस्पोज ऑफ या डिस्पोज OFF।
तो डिस्पोज ऑफ सिंगल एफ का मतलब होता है यू डिस्पोज ऑफ समथिंग, गेट रिड ऑफ समथिंग दैट वन डज नॉट वांट और कीप। कोई जंक है, वेस्ट है एटसेट्रा, तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। डिस्पोज ऑफ इज फर्नीचर। और जब डबल एफ होता है तो इसमें ये होता है कि जजमेंट लर्न आर्टिकल्स में भी हमने देखा, वॉश वंस हैंड ऑफ समथिंग। आपने किसी वर्क में इन्वॉल्व हो बट आपने उससे पल्ला झाड़ लिया, दैट इज डिस्पोज, ओ डबल एफ। देन एक नया वर्ड इंग्लिश में है, इंडियन इंग्लिश में, को ब्रदर एंड को सिस्टर, जैसे ब्रदर इन लॉ, ये सब फॉर्मल वर्ड्स हैं, इंडिया का इनोवेशन है ये। मनी विल मेक द मेयर गो, इट मीन्स यू कैन अकॉम्प्लिश एनीथिंग इफ यू हैव मनी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू हैव मनी। Then she is lame leaping over a stile, but if you will her to me spare, you will have money for your mare. Then लीप ईयर क्या होता है? देखो, हर साल होता है 365 1/4 डे का, तो ये 1/4 दिन एक्स्ट्रा है, बट हम काउंट करते हैं 365, तो हर 4 साल बाद 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 ये बन जाएगा 1। तो हर 4 साल बाद हम 365 प्लस 1 करते हैं, दैट इज 366। देन दिस इज एक्सपीडियंट है, इसका मतलब मीन्स टू बी एन एंड, नॉट नेसेसरीली अ प्रिंसिपल्ड और एथिकल वन, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ सीकिंग है, दैट इज एक्सपीडियंट। रशियन एफएसबी है। देन स्वीडन ऑफिशियली जॉइंस नेटो आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स एक्सेशन पावर process. Then Malaysia Prime Minister है. China calls conflict in Gaza a disgrace to civilization, which is true, we agree. Former President Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa turns author. Russia warns US that it will expel diplomats. और ये यहाँ पर seize this ship जो है ये capsize हो गया, grave threat है। ये बेलीज का फ्लैग्ड लेबनान के पास ये शिप जो है हुदी मिसाइल के कारण डिस्ट्रॉय हुआ है। Then this is Venezuela invites EU to observe election. Nigeria. Afghan museum exhibits artifacts of Taliban victory. Then this is Nepal. ये है क्यूटी पाइज, ये कूल कैट है, बॉन्डिंग टाइम है, सुमात्रन टाइगर कब, ये है रोम के एक जू में। यूएनएससी क्रिटिकल सिचुएशन वायलेंस हाइती की बात कर रही है। फुकुशिमा रिएक्टर का मेल्ट डाउन, तो फुकुशिमाज रिएक्टर रूम रिमेन्स अ मिस्ट्री। टाटा मोटर्स है, इन्फ्लेशन 5% है। देन दिस इज मूडी की रेटिंग। देन दिस इज स्टील डिमांड। देन हायर कार्बन टैक्स, एनबीएफसी मैरीटाइम डेवलपमेंट। और यहाँ पे बात है विंडो ड्रेसिंग एंड दिस इज न्यूयॉर्क क्राफ्टेड विद केयर, बिग टेक कंपनीज, ईवी मेकर्स। सो ये तो हुआ न्यूज़पेपर 8 तारीख का। अब हम क्विकली 9 तारीख का न्यूज़पेपर देखते हैं। So this is 9th मतलब today, Saturday, March 9, 2024. 2 key RTI portals under maintenance, unstable gateway. Mr. Biden hits out at Trump, तो अभी US में elections हैं. Bhutan Prime Minister Topgay to visit India next week, focus on ties India-Bhutan relation. Wires, bells and this student, तो postmortem में brutal assault की बात की है, college violence, students violence. देन यहाँ पर 100 रुपये कम हो गए हैं एलपीजी की रीफिल प्राइस में। सो 100 रुपये का यहाँ पे गवर्नमेंट ने कट किया है। आर्मी ऑफिसर एब्डक्टेड फ्रॉम होम इन मणिपुर, रेस्क्यूड इन अ फ्यू आवर्स। सो दिस इज अ डिफिकल्ट न्यूज़। मणिपुर में अभी सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की डिफिकल्टी है। सेंटर ट्वीक्स प्राइम मिनिस्टर रूफ टॉप सोलर स्कीम, तो इसमें अब 75,000 करोड़ की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना है और इसमें पहले 100% गवर्नमेंट पूरा सब्सिडी दे रही थी, अब उसको 60% सब्सिडी दिया जाएगा 1 करोड़ हाउस होल्ड को 1 किलोवाट से 3 किलोवाट सोलर पैनल लगाने में। ये कैडेट्स हैं, परफॉर्म कर रहे हैं मोटरसाइकिल, पासिंग आउट परेड है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की। सेंटर वॉन्स अगेंस्ट ऑफर्स ऑफ जॉब विद रशियन आर्मी, तो विदेश जाने के सपने में हम ये नहीं हो कि हम वहाँ की फौज ज्वाइन करें और फिर फ्रंट में जाके हमें रशियन आर्मी में फाइट करना पड़े। आईटी ट्राइब्यूनल है, Assam jail, seizure of device from inmates. Then this is next page. Then this is मेघालय का ये है ब्रिनिहाद, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया ऐसे कहा गया है। यहाँ पर सेंटर है रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर का, जिसने ये डाटा दिया। तो ये मेघालय है, मेघालय में ही एक रिवर है जो मोस्ट क्लीन रिवर ऑफ एशिया जिसे बोला गया था, उस रिवर का नाम बताइए। तो CREA क्या डेटा है, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, मंथली एयर पॉल्यूटेंट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। इसके अलावा हापुड़ उत्तर प्रदेश, हनुमानगढ़ राजस्थान, ये भी काफ़ी पॉल्यूटेड शहर है। क्लीनेस्ट सिटी देखें तो शिवसागर, सिलचर, आइजॉल और इम्फॉल है, विच इज़ अ गुड थिंग।
मिसयूज ऑफ पोर्टेबल वाटर टू अट्रैक्ट फाइन ऑफ 5,000 इन बेंगलुरु, वाटर का सीवियर शॉर्टेज हो रहा है। सेंटर वॉर्न्स अगेंस्ट ऑफर्स ऑफ जॉब्स विद रशियन आर्मी, एंड इंडियन डिप्लोमेट मेट अफगान अथॉरिटीज इन काबुल। सुधा मूर्ति मैम नॉमिनेट हुई हैं राज्यसभा से, फिलेंथ्रोपर और फिलेंथ्रोपिस्ट एंड ऑथर ऑफ कन्नड़ एंड इंग्लिश, तो अब राज्यसभा से अभी नॉमिनेट हुई हैं। Delhi, this is again, we should be respectful. Backed by BrahMos Navy base on Minicoy Island to act as gatekeeper in Arabian Sea. तो देखो मालदीव्स के साथ इशू हुआ और देन फिर ये लक्षद्वीप काफ़ी न्यूज़ में। लक्षद्वीप इज इंडियन यूनियन टेरिटोरी। तो यहाँ पे ब्रह्मोस भी डिप्लॉय हो रही है, नेवी का बेस हो रहा है और अरेबियन सी का इसे गेट कीपर बनाया जाएगा। सो लेट अस सी। मिक्स्ड सिग्नल्स हैं, दिस इज नेक्स्ट वन। देन यहाँ पर है दिस इज महाशिवरात्रि। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड्स दिए हैं। 2 की आरटीआई पोर्टल्स है इमरजेंसी मेंटेनेंस के लिए डाउन। EDEC चैट जीपीटी मेकर्स हेल्ड टॉक्स इन फरवरी ऑन मिसयूज ऑफ एआई। सो सी, ये है रूफटॉप सिस्टम। 1 किलोवाट आवर का करीब 50,000 का खर्चा आता है ऐसे सोलर पैनल लगाने में। तो 3 किलोवाट आवर आपको 300 यूनिट बिजली बना सकता है साल भर में, मंथ में, और इससे आप 78,000 रुपए की सब्सिडी यहाँ पर ले सकते हैं। सो लेट अस सी, गवर्नमेंट अब इसको 60% सब्सिडाइज करेगी। इंडिया का सब ऑप्टिमल यूज है लेबर पावर। रेगुलर आर्टिकल है यहाँ पे कि हम अपनी वर्क फोर्स को लैक ऑफ स्किल एंड लैक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग के कारण प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है। ये डुबियस रेस्पॉन्स है। एसबीआई ने जो टाइम मांगा है डिटेल्स डेटा रिलीज करने के लिए। हार्ट ऑफ द मैटर, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर इज लाइक जस्ट अनदर, जैसे इंडिया के सारे स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स हमारे लिए बराबर है। सो द थिंग इज कि जितना कोई दूसरा इंडिया का स्टेट है उतना ही कश्मीर भी हमारा पार्ट है और कश्मीर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब कश्मीर में हमें ज़रूरत है डेवलपमेंट, ग्रोथ एट्सेट्रा। सो डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर मस्ट हैपन अलॉन्ग साइड रिस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, ये बोला गया है, हार्ट ऑफ द मैटर है। तो दैट इज वाई म्यूचुअल लव, ट्रस्ट एट्सेट्रा इज रिक्वायर्ड। कश्मीर जो है इसमें आइसोलेशन टेंडेंसीज नहीं आनी चाहिए। देन इंडिया सब ऑप्टिमल यूज है लेबर फोर्स का। जेंडर इक्वालिटी इज द प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रेगुलर आर्टिकल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5, ऐसे टोटल 30 कितने गोल्स हैं, SDG 30s है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसमें जैसे SDG 5 है जो जेंडर इक्वालिटी बोलता है, SDG 7 क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी बोलता है, SDG 12 क्लाइमेट एक्शन अमंग मैनी अदर्स बोलता है। सो द थिंग इज वुमन प्ले क्रूशियल रोल एनर्जी में, प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में। सो इक्वालिटी इज ज़रूरी, इक्विटी इज ज़रूरी। तो WHO भी बताता है अगर हेल्थ में अगर बराबर के राइट्स नहीं मिलते हैं तो प्रॉब्लम्स होती है। जेंडर गैप को ब्रिज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Wires bells in the this, then this is next one, Kerala, then the bitter battle of sweet lime farmers। तो ये बात है नालगोंडा का। वाटर क्राइसिस है, क्रॉप हॉलिडे हो रहा है यहाँ पर और इनकम डिक्लाइन हो रही है। सो यहाँ पर है दिस इज स्वीट लाइम का ऑर्चर्ड। Then this is next one, Biden, and this is Palestine, Nigeria, fight for education, US Embassy, Hong Kong, and this is Ukraine. Indonesia, now this is a very serious matter. Airline pilots fell asleep mid-flight agency. So this is scary. Forced departure hai. This is Myanmar. Children fall to hunger. This is very unfortunate. Human rights violation in Gaza. TVS motor hai. Food plate cost show vegetarian thali. Then this is display है use of date name of creator on prepared food। FSSAI ने बताया डेट वहाँ पे प्रॉपर हो। ऑलराइट, सो ये होता है हमारा 8th और 9th का न्यूज़पेपर, 8th और 9th का न्यूज़पेपर। अब हम आंसर राइटिंग भी रिज्यूम करते हैं। 26 तारीख को एक आंसर राइटिंग का सवाल था और वो था लैंडमार्क जजमेंट्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ आती है बट जब तक आप कंसोलिडेट नहीं करोगे वो रिटेन नहीं होगी। तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आंसर राइटिंग से आपकी राइटिंग अच्छी होती है बिकॉज प्रीलिम्स के बाद मेंस तो लिखना ही है। सो यू शुड राइट। और जिस तरीके से हमारे यहाँ सबमिशंस हैं, जो स्टैंडर्ड है, दिस इज़ वेरी वेरी गुड स्टैंडर्ड। एवरीबडी पार्टिसिपेट, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे ये लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, तो देखो इसमें कितनी सारी अच्छे से, सबसे पहले तो कॉपी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड काजल, नीट एंड क्लीन है। राइटिंग देखिए, नेम ऑफ केस, जजमेंट।
तो अगर आपने ऐसे सारे केसेस तैयार कर लिए, आपका प्रीलिम्स का एक सवाल भी सही हो जाएगा और मेंस में बहुत अच्छा आंसर राइटिंग भी हो जाएगा. सो द थिंग इज यू डू वन राइटिंग एक्सरसाइज एंड यू गेट सो मच ऑफ बेनिफिट. सो दिस इज गुड. राम नरेश, दिस इज रियली गुड. लैंडमार्क जजमेंट है, फिर ये सारे जजमेंट्स बताए. देखो, दिस इज रियली रियली नाइस, वेरी गुड. सी, दिस इज सो एग्जॉस्टिव. ये कितने केसेस हैं यहाँ पे? एवरीबडी इस कॉपी को एक बार फिर से देखो. ये जो 40 केसेस दिए हुए हैं, ये सारे के सारे 40 केसेस आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेणु. वेणु भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहा है. सी, दिस इज गुड. ये सारे इन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट कंसाइज नोट्स में बना दिए. इससे रिलेटेड एक या दो इंपॉर्टेंट बातें भी हम यहाँ पे लिख देते हैं. देन रफ़ी, दिस इज गुड. आपने केसेस की लिस्ट बनाई. अब देखो, ये 34 केसेस हैं. इस केसेस में एक या दो इंपॉर्टेंट बातें भी लिखो, जैसे कि राम नरेश ने किया है कि जैसे MC मेहता वर्सेस केस है, इसमें पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का आया, तो राइट 1 और 2 लाइन जिसमें उस केस के बारे में बताइए. नंदिनी, दिस इज गुड. अब देखो, नंदिनी ने बहुत अच्छे से लिखा है. दिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड नंदिनी, वंडरफुल. दिस इज रियली रियली गुड, वेरी गुड. सारे केसेस हैं. सी द लिस्ट, दिस इज अगेन एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. वेरी डन, वेल डन, दिस इज रियली गुड. आशा ने टैबुलेट किया है. तो देखो, जितना लिखोगे उतना बेनिफिट होगा. हम ऐसे अभी प्रीलिम्स स्पेसिफिक आंसर राइटिंग कर रहे हैं. डेली आई विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस जो हाई यील्डिंग है प्रीलिम्स कॉन्टेक्स्ट में, उसको आप यहाँ पे देखो. हरजिंदर, दिस इज गुड. सी, कितना बढ़िया से लिखा है. दिस इज वेरी गुड, गुड हैंड राइटिंग, वंडरफुल. विश्वजय इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड, वेरी हार्ड वर्किंग. सी, ये सारे केसेस और 1 और 2 इंपॉर्टेंट लाइन जो मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या फिर कुछ एक सिंपल सा MCQ आ सकता है, ये गलत नहीं होना चाहिए. ये आपके इजी जोन कहलाता है. सो दैट इज वाई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते, चलेगा, बट इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस हमारे करेक्ट होने चाहिए. ओके, सो इस तरीके से न्यूज़पेपर अभी हम कंटिन्यू करते हैं फॉर सम डेज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.